The topic is conicoid. Write down the general equation of second degree. The general equation of second degree, x square plus by square plus cz square plus 2fyz plus 2gzx plus 2hxy plus 2ux plus 2by plus 2wz plus d equal to 0 represents a locus called a conicoid, ठीक है, राइट, जिससे और क्वाड्रिक जो भी लिख सकते हो। अब इसमें हमें जो पढ़ना है बेसिकली कॉनिकॉइड को डिफाइन करें अगर, ठीक है, तो कितने फॉर्म होते हैं तो राइट डाउन द अबव जनरल इक्वेशन कैन बी रिड्यूस द अबव जनरल इक्वेशन can be reduced to one of the following standard form, can be reduced to one standard form, right? First, this one. Second, this is called ellipsoid. Ellipsoid. Here, x square by a square plus this is hyperboloid, one sheet, then this is rid of two sheet, then point number 4, x square by a square plus y square by b square equal to 2z by c. This is elliptic paraboloid. इलेप्टिक पैराबोलॉइड, ठीक है, और इसी में निगेटिव कर दें, उनको इतने से काम चल जाएगा।
hyperbolic paraboloid, राइट। ये हमको 5 करने हैं, ठीक है। नाउ द फर्स्ट, तो हमें लेफ्ट साइड पढ़ना है मेनली। एक लेफ्ट साइड इसके फॉर्म में हो सकता है, लेफ्ट साइड इस फॉर्म में हो सकता है। दिस इज कॉनिकॉइड, दिस इज कॉनिकॉइड, इस फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक तुमको ये पढ़ना है, फिर ये आपका एलिप्टिक पैराबोलॉइड ऐसे पढ़ना है, ठीक है। इसको इस फॉर्म में पढ़ सकते हैं, टू सी जेट या टू जेट, टू सी जेट भी लिख सकते हो, टू जेट लिख सकते हो इसके फॉर्म में। ये दो मेन, ये दो पढ़ना है, ठीक है। और एक हाइपरबोलॉइड ऑफ वन सीट, ये 3 चीज पढ़ना हमको, ठीक है। इसका टेंजेंट और इसका नॉर्मल, मेन पहले 2 चीज पढ़ना है ये, ठीक है ना। तो सबसे पहले राइट हेडिंग टेंजेंट प्लेन, क्वेश्चन नंबर 247, ओके। तो 247 इस आर्टिकल टू फाइंड, बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने पहले किया हुआ है, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन at the point x1 y1 z1, निकल कर आया था सेम फॉर्मेट, at the point x1 y1 z1 of the central conicoid z1 of the central conicoid ax square plus by square plus cz square equal to 1, राइट। तो जैसे हमने कल आर्टिकल किया था, एक कई बार हम कर चुके हैं, आप हमने कोर में भी किया है, सिलेंडर में किया है, इसमें भी किया है, सेम वही चीज कॉनिकॉइड में। राइट डाउन द गिवन कॉनिकॉइड इज x square plus by square, this, right on. The equation applied through the point x1 y1 z1 is the equation of line through x1 y1 z1 is x minus x1 by L, y minus y1 by M, z minus z1 by N equal to R C, and therefore any point on the line is LR plus x1, MR plus y1, NR plus z1. If it lies on the equation 1, if it lies on the equation 1, then E times
b times nr plus this. This implies plus 2 times L AX1 plus this. क्या जाएगा? ठीक है, right? Since the point x1, y1, z1 lies in equation 1, since the point x1, y1, z1 lies on equation 1, therefore ax1 square plus by1 square plus cz1 square equal to 1. इसको इक्वेशन नंबर 3 कर लो, इसको 4 कर दो, ठीक है, and therefore from 3 and 4 this r square plus 2 times zero. It is quadratic in R and its one roots be equal to 0, which is quadratic in R and its one root equal to 0, right? Since, next line, since the line 2 touches the conicoid first, since the line 2 second touches the conicoid first, therefore the two roots are equal. Two roots are equal, and since one value of r equal to 0, one roots of equation 5 equal to 0, therefore other roots is also equal to 0. And therefore if possible कब होगा, and therefore quotient of r equal to 0, and this implies alx1 plus bmy1 plus cnz1 equal to 0, right? Which is required condition. ठीक है, right? अब लाइन का लोकस निकालना है, which is required condition. The locus of the line is obtained by, this question number is 6. The locus of the line 2 is obtained by eliminating LMN, eliminating L comma M comma N from equation 2 and 6, and therefore A times x minus x1 x1 plus b times y minus y1 y1 plus c times z minus z1 z1 0, and this implies ex x1 by y1 plus c z z1 equal to ax1 square
plus by1 square plus cz1 square, and this implies one, which is this. See, required equation of tangent plane at the point x1, y1, z1, which is required equation of tangent plane. Equation of tangent plane at the point x1, y1, z1. ठीक है, तो एक तो आपका ये था, और सिंपल जो तरीका होता है याद करने का, कैसे निकालते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को रिप्लेस कर दो, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई इंटू वाई जेड इंटू जेड, और एक एक्स वाई जेड को इससे रिप्लेस कर दो एक्स वाई जेड से, तो आपका टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा. ठीक है, दिस 247 डन. 248, this 248 condition of tangency. Condition of tangency. Condition of tangency. To find the condition that the plane Lx plus My plus Nz equal to P. Lx plus My plus Nz equal to P. So touch the conicoid. Touch the conicoid. Conicoid x square plus by square plus cz square equal to 1. Right? ये आपका explanation. Find the condition that the plane. The given plane is this. The given conicoid is right. Let the plane 1, let the plane 1 touches the conicoid 2 at the point x1, y1, z1. ठीक है, therefore the equation of tangent plane at x1, y1, z1 is, पिछला आर्टिकल ax1 plus by1 plus c z1 equal to 1. कुछ नहीं करना है, ठीक है. Since equation 1 and 3 are identical, therefore
comparing the coefficient of like term कितना हो जाएगा, and therefore ax1 by L b1 by m cz1 by n equal to 1 by p. ठीक है, and therefore what is x1? L upon EP y1 m upon bp और z1 n upon cp. ठीक है, since the point x1 y1 z1 lies on the conicoid 2, therefore ax1 square plus by1 square plus c0 square equal to 1, and therefore a times what is x1? L by plus b times m by bp plus c times n by this, and therefore L square by a plus m square by b plus n square by c equal to p square, which is required condition, which is रिक्वायर्ड कंडीशन. और अगर इसी में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पूछता है या क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट पूछता है इसी में, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसे नोट कर लो. नोट पॉइंट नंबर 1, सीधे द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज, कहां पे टच कर रहा है, एक्स वाई जेड पे, दैट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज कितना हो जाएगा, L by EP M by BP और N by CP. ठीक है, राइट. और अगर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन पूछता है, टेंजेंट प्लेन, तो ये आपका टेंजेंट प्लेन है, P की ये वैल्यू है, इसे लिख लो. पॉइंट नंबर 2. अब इसी में क्वेश्चन कैसे डाल सकता है कि फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन शुड टच द कॉनिकॉइड, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन. तो कुछ नहीं करना है, ये आपका टेंजेंट प्लेन है, P की वैल्यू आपका ही है, पुट कर दो. तो पॉइंट नंबर 2, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज Lx plus My plus Nz equal to plus minus under root of L square by A plus M square by B plus N square by C. तो ये तीन चीज आपका एक में आ सकता है, ठीक है ना, ये चीज. तो ये आपका पूछेगा तब लिखोगे, नहीं पूछेगा तो आप जो किया आपने इसमें. राइट. अब इसी चीज को जो आपने क्वेश्चन किया, ये क्वेश्चन, इसी को कन्वर्ट कर दो, इसी क्वेश्चन को, ठीक है, जो आपने आर्टिकल किया, आपने कॉनिकॉइड एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 पे किया, आपने इस पे किया, यही क्वेश्चन इस पे डाल सकता है. तो कुछ नहीं करना है, दिस ए बी सी रिप्लेस बाय 1 बाय स्क्वायर में बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, जहां जैसे जैसे आपने किया है वही चीज करोगे, बस ए बी सी को रिप्लेस कर दो. ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, चलो इसी क्वेश्चन डिफाइन करते हैं. अब इसी क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं. 249 राइट डाउन.
249 एंड 250 दो क्वेश्चन ले देते आपको, आप खुद कर लीजिएगा, राइट। टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent plane at the point x1, y1, z1 to the left side x square by a square this, right। ये क्वेश्चन अब सोल्यूशन कैसे करेंगे इसको आप खुद कर लीजिएगा। रिप्लेस ए बी सी बाय 1 बाय इन क्वेश्चन कौन सा है 247, ठीक है। एंड देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ, आप वैसे कर लीजिएगा, जहां जहां आप एबीसी लिखे हो वहां पे 1 बाय स्क्वायर बाय स्क्वायर बाय स्क्वायर करते चले जाना, सेम फॉर्मेट। एंड देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज कितना हो जाएगा x x1 बाय a स्क्वायर प्लस y y1 बाय प्लस z z1 बाय 1, ठीक है ना। एक्सप्लेन, प्रूव इट, आप इसको कर लीजिएगा सेम फॉर्मेट पे, ठीक है ना। 249 250 सेकेंड वाला क्वेश्चन, टू फाइंड द कंडीशन find a condition that the plane lx plus my plus nz equal to p so touch the ellipsoid x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equal to 1. Also find point of contact and equation of tangent plane. राइट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। तो जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया था सेम, डू योरसेल्फ सेम एज क्वेश्चन नंबर 248। द कंडीशन ऑफ टेंजेंट इज ए बी सी को रिप्लेस करो 1 बाय स्क्वायर बाय स्क्वायर, तो ए स्क्वायर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एन स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एन स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या था, ये था एल बाई ए पी, तो ए स्क्वायर एल बाई पी, ठीक है, बी स्क्वायर एम बाई पी एंड सी स्क्वायर एन बाई पी एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन x square by e square plus y square by b square plus z square by c square equal to plus minus under root of e square l square plus प्लस। तो ये आपका दोनों सेम फॉर्मेट में चलता है।
तो अगर ए आता है तो पिछला हो जाएगा, पिछला आता है तो हो जाएगा, कुछ नहीं करना, ए बी सी को आपको रिप्लेस करना है, ठीक है ना, हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, एल एक्स प्लस टेंजेंट प्लेन, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस, ठीक है ना, दिस इज, ये आपका फॉर्मूला। हो जाएगा ये सेम फॉर्मेट। नेक्स्ट, तो बिल्कुल सेम फॉर्मेट पे कर जाइएगा। ये 4 क्वेश्चन आपका एक फॉर्मेट होता है, तो पेपर में या तो सेंट्रल कॉनिकाइड का देगा, या तो 4 नहीं होता है, जो आपका पैराबोलॉइड होगा वो भी ऐसे ही होता है सेम फॉर्मेट में, लेकिन वो अलग कॉन्सेप्ट पे चलता है, इसलिए उसको अलग से कर लेंगे, ठीक है। तो अभी आपका कॉनिकाइड, सेंट्रल कॉनिकाइड या एलिप्सॉइड। नेक्स्ट हेडिंग इज डायरेक्टर स्फीयर, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन पेपर पूछता है, डायरेक्टर स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 251। इस आर्टिकल, ये सारे आर्टिकल आपके 251। To find the locus of the point of intersection, to find the locus of point of intersection of 3 mutually perpendicular tangent plane, to find the locus of point of intersection of 3 mutually perpendicular tangent plane to the central conicoid. Central conicoid ax square plus by square plus, अब सेंट्रल कॉनिकाइड पे कर लो चाहे लेफ्ट साइड पे कर लो, सेम थिंग। ये अगर पूछता है डिफाइन डायरेक्टर सर्कल एंड फाइंड, ठीक है ना, तो द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 mutually perpendicular tangent plane to the conicoid ellipsoid is called director circle, director sphere. That is called the director sphere, and its equation is ax square, या x equation is x square plus y square plus z square equal to 1 by a plus 1 by b plus 1 by c, सेंट्रल कॉनिकाइड के केस में डायरेक्टर स्फीयर, स्फीयर का इक्वेशन x स्क्वायर प्लस y प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 1 by a प्लस 1 by b प्लस 1 by c, और अगर ये लेफ्ट साइड देता है x स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाई c स्क्वायर इक्वल टू, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर z स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। यही ट्यूडिम भी होता है, ट्यूडिम बोलते हैं डायरेक्टर सर्कल, डायरेक्टर सर्कल, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 perpendicular tangent plane to the left side is a sphere is called डायरेक्टर स्फीयर। ऐसे ऐसे बनता है, अगर डायग्राम अगर समझोगे तो ऐसे बनता है, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको तो बनाने में प्रॉब्लम है, तो ये 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन का लोकस बनाते हैं तो एक सर्कल बनता है, दैट इज कॉल्ड द डायरेक्टर सर्कल, जिसका रेडियस कितना होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है ना, राइट। ऐसे अगर हम बात करें तो ऐसे बनता है, एंड दिस, और इसके थ्रू, ठीक है ना, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर स्फीयर। तो करेंगे क्या, करना कुछ क्या है इसमें, बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है। तो दिस आर्टिकल दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर डिफाइन करता है कि डिफाइन डायरेक्टर स्फीयर, तब लिखोगे द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3 mutually perpendicular tangent plane to the any conicoid is called डायरेक्टर स्फीयर, अगर डेफिनेशन देता है तो, ठीक है।
कैसे करेंगे इसको? राइट डाउन द गिवन कॉनिकॉइड इज x square this one. Let L1x plus M1y plus N1z equal to अंडर रूट ऑफ क्या था? एल स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी और प्लस सी. ये ले लो L2x प्लस M2y प्लस N2z इक्वल टू ये L1 M1 N1 कर लीजिएगा. L1 M1 N1 और फिर L2 स्क्वायर बाई ए प्लस M2 स्क्वायर बाई बी प्लस N2 स्क्वायर बाई सी एंड L3x plus M3y plus N3z equal to plus this. This is question number 2, 3, 4. B. 3 mutually perpendicular tangent plane. B. 3 mutually perpendicular tangent planes. ठीक है, ये आपका इस कॉनिकॉइड पे टेंजेंट प्लेन है. सो दैट अगर ये परपेंडिकुलर टेंजेंट प्लेन है तो कंडीशन क्या होता है? सो दैट L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस 0 बाकी तीनों भी फिर L2 के साथ. ठीक है, राइट एक्सेट्रा और साथ के साथ ये भी L1 M1 प्लस L2 M1 M2 प्लस L3 M3 एक्सेट्रा. ये जो लिखते हैं ना कंडीशन, समझ लीजिएगा इस कंडीशन को कैसे लिखते हैं इसको. ये चेंज ऑफ एक्सिस होता है. ये चेंज ऑफ एक्सिस एक चैप्टर होता है, उसमें सिर्फ एक पॉइंट बस जान लीजिएगा कि मान लो ये मैं दे दूंगा आप लोगों को फोटो लिख करके, उसे मैंने ऑनलाइन में कराया हुआ है. जैसे कि मान लो कि इस एक्सिस का डायरेक्शन कोसाइन L1 M1 N1 है, इसको रोटेट कर दिया, ये बन गया L1 L2 L3. तो अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या कंडीशन होता है? L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर प्लस N1 स्क्वायर इक्वल टू 1. और जब रोटेट करते हैं तो ये L1 M1 N1 ना होकर के L1 L2 L3 बन जाता है. तो उसके करस्पॉन्डिंग L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इक्वल टू 1. तो ये सारे जो आपका टेंजेंट प्लेन डिफाइन सारे क्या है? म्यूचुअली परपेंडिकुलर है. तो मतलब ये जो है L1 M1 N1 L2 M2 N2 L3 M3 N3 और फिर रोटेशन में L1 L2 L3 M1 M2 M3 और N1 N2 N3 तो सबके साथ डिफाइन करेगा. तो ये भी होगा, ये भी होगा एंड ये भी होगा एंड और ये भी होगा एक्सेट्रा. राइट, ये आपका होता है. ठीक है, राइट. दिस इक्वेशन नंबर इज 5. इसको 5 कर दो. ठीक है, अब कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल फॉर्मेट है. ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द कोऑर्डिनेट of the point of intersection satisfy the three equation. The coordinate of the point of intersection satisfy the three equations 2, 3 and 4 and its locus and
its locus is obtained by eliminating L1 M1 N1, L2 M2 N2 and L3 M3 N3 from the above equation, right? और बहुत सिंपल है, क्या करें? स्क्वायरिंग एंड एडिंग, राइट? Squaring and adding equation 2, 3 and 4. Now squaring and adding, equation 2, 3, 4, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा and therefore L1 square plus L2 square plus L3 square x square plus M1 square plus M2 square plus M3 square y square plus N1 square plus N2 square plus N3 square Z square plus क्या बनेगा? 2 times L1 M1 plus L2 M2 plus L3 M3 x y, ऐसे बनता जाएगा सारा, ठीक है, राइट? ठीक है, और इसमें क्या आ जाएगा? 1 by a L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर और प्लस 1 by b M1 स्क्वायर प्लस M2 स्क्वायर प्लस M3 स्क्वायर और प्लस 1 by c N1 स्क्वायर प्लस, अब ये बन जाएगा, ये 1 है, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, बाकी सारा 0 0 हो जाएगा, ठीक है, और ये हो जाएगा 1 by a plus 1 by c. This implies x square plus y square plus z square 1 by a plus 1 by b plus 1 by c. ठीक है, yes. This is which is required locus and is a sphere, which is required locus and is a sphere and called director sphere, ठीक है, and it's called डायरेक्टर स्फीयर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को चेंज कर सकता है, ऐसे दे देगा 252, आप निकाल लीजिएगा, प्रूव दैट, क्वेश्चन चेंज कर देगा, इसको ऐसे लिख सकता है, प्रूव दैट द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ intersection of 3 mutually perpendicular tangent plane to the ellipsoid x square by a square plus y square by b square plus z square by c square equal to 1 is x square plus y square plus z square equal to a square plus b square plus a square. तो सेम है, जब आप रिप्लेस abc बाय 1 by square 1 by square 1 by c square, तो बिल्कुल सेम करोगे, ठीक है ना, इस तरह से. Next, done. Two 53.
show that the plane x plus 2y plus 3z equal to 2 touches the conicoid x square minus 2y square plus 3z square equal to 2. ये आपको डिफाइन करना है. Find also the point of contact. Find also the point of contact. Solution. Write down. The given plane is the given plane is 3z. The given conicoid is let the plane 1 touches to at x1 y1 z1. ठीक है, and therefore the equation of tangent plane at x1 y1 is x1 minus 2 y1 plus 3 this. बाकी स्टेप सेम. Since equation 1 and 3 are identical, क्योंकि भी टेंजेंट प्लेन है तो since जैसा आपने आर्टिकल किया था 1 and 3 are identical, therefore comparing the coefficient of like terms हो जाएगा x1 by 1 equal to minus 2y1 by 2 equal to 3z1 by 3 equal to 2 by 2. ठीक है, तो this implies x1 equal to 1 y1 minus 1 z1 1. ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गया. ठीक है, अब ये कह रहा है कि टचेस द कॉनिकॉइड, तो मतलब ये जो पॉइंट आपका है कि कोई एक्सप्रेस पॉइंट कहाँ लाई करेगा, कॉनिकॉइड पे भी. ये पॉइंट क्या करना चाहिए उसको, राइट डाउन. since the point x1 y1 z1 lies on the conicoid, therefore x1 square now. ठीक है, now ठीक है, 1 square minus 2 times plus equal to 2. ठीक है, which is true.
hence the plane 1 touches the conicoid and the point of conicoid to at, इसको लिख सकते हो at कहाँ पे 1 minus 1 and therefore the point of contact is this. ठीक है ना. Next question 254. Find the equation of tangent plane. Find equation of the tangent plane. Tangent plane to the surface tangent plane to the surface 4x square minus 5y square 4x square minus 5y square plus 7z square plus 13 equal to 0 parallel to the plane what is parallel to the plane 4x plus 20y 4x plus 20y minus 21z equal to 0. This is ठीक है. बहुत सिंपल फॉर्मेट है और डायरेक्ट रिजल्ट लगा सकते हो आप इसमें. द इक्वेशन ऑफ एनी प्लेन parallel to the given plane 4x plus 20y minus 21z equal to 0 is 4x plus 20y minus 21z की. Yes. ठीक है. Right. And the given conicoid is conicoid is 4x square minus equal to minus 13. That is x square by minus 13 by 4. ठीक है. प्लस y स्क्वायर बाय 13 by 5 प्लस लिखेंगे नहीं आप. वेट, इसको ऐसे कर लेते हैं या ax में कन्वर्ट कर लेते हैं. या अच्छा रहेगा ax में कर लो. x स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, ax में कर लो. कॉनिकॉइड में कर लो. दैट इज माइनस 4 by 13 प्लस 5 by 13 और माइनस दिस इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब सिंपल आप लिखोगे. क्या करना है आपको? प्रूव करना है कि टच करता है कि नहीं करता है. ठीक है. तो सिंपल लिखोगे वी नो दैट. राइट डाउन कंडीशन. आप इसको लेकर के बस इसको लगा देना आपको. वी नो दैट इफ द प्लेन Lx plus My plus Nz, we know that the plane Lx plus My plus Nz equal to P touches the conicoid
touches the conicoid ax square plus by square plus cz square equal to 1, then the condition of tangency is, L square by A plus M square by B plus N square by C equal to P square. अब कंपेयर कर लो, दैट इज इफ कितना हो जाएगा, व्हाट इज L, Lx 4, तो दिस इज 16 by A minus 4 by 13, M 20, ठीक है, तो दिस इज 400 by 5 by 13 plus N 21, 4 41 by minus 7 by 13 equal to P square, P is की, इसको सॉल्व कर लो, की वैल्यू निकल जाएगा और की यहां पुट कर दो तो प्लेन का इक्वेशन निकल जाएगा। सॉल्व करके कितना रहा की इक्वल टू प्लस माइनस 13, ओके सॉल्व कर लीजिए, प्लस माइनस 13, ठीक है। अब इस की वैल्यू को फर्स्ट में पुट कर लो क्योंकि ये टेंजेंट प्लेन है, तो पुट वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, पुट वैल्यू ऑफ के वेरीफाई, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, पुट वैल्यू ऑफ के इन इक्वेशन 1, the required equation of tangent plane is this is 4x plus 20y minus 21z equal to plus minus 30, तो ये आपका ऐसे निकालना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डन, ओके 255, finds the equation to the two tangent planes, find the equation to the two tangent planes, which contain the line given by 7x plus 10y minus 13 equal to 0 equal to 5y minus 3z. This equal to 0 and 5y minus 3z equal to 0. And touch the conicoid. Touch the conicoid. What is conicoid? 7x square plus 5y square plus 3z square equal to 60. Equal to 60, राइट। कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल फॉर्मूला लिखना है, एनी प्लेन थ्रू दिस लाइन, दिस प्लस के टाइम्स, आपको पिछला ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा चेंज करना है। द गिवन लाइन इज सेवन एक्स प्लस 10y minus 13 0
5y minus 3z equal to 0. Therefore, the equation of any plane through the line is 7x plus 10y minus 13 plus k times 5y minus 3z equal to 0. तो जाएगा दिस इंप्लाइज 7x plus 10 plus 5ky minus 3kz minus तो इक्वल टू 13 कर रहा है, दिस इक्वल टू 13. ठीक है. एंड द गिवन कॉनिकॉइड इज given conicoid is 7x square. इसको ऐसे ले सकते हैं, दिस इंप्लाइज 7/60x स्क्वायर प्लस 5/60y स्क्वायर प्लस 3/60y. ठीक है. बाकी स्टेप सेम. कैसे डिफाइन करना है? We know that जो लिखा था आपने, तो यहां से निकाली बाकी कर जाइए जैसे पिछला किया था. We know that if the plane Lx plus my plus nz equal to p touches the conicoid ax square plus by square plus z square equal to 1, then the condition of tangency is L square by a plus m square by b plus m square by c equal to p square. पुट करो उसमें जैसे आपने पिछला क्वेश्चन किया था, बाकी कुछ नहीं करना है. L is आपका 7, M is 10 plus 5k, N is equal to minus 3k, P is 13, A is 1/60, B by 5/60, जो भी है. Solve this. फाइंड वैल्यू आपकी, सिंप्लीफाई करिए. Solve this. Save as it is. Previous question. What is K? K निकालिए कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? इतना नहीं. सिंप्लीफाई कर लो, पहले सिंप्लीफाई कर दो. 60 30 जाएगा, सब में 60 है. और यहां से 5 भी कॉमन कर लो, 2 प्लस के कॉल स्क्वायर हो जाएगा तो 25. कितना आ रहा है? कुछ नहीं बन रहा है. 2k स्क्वायर प्लस 5 कैसे पूछाएगा? इसको सॉल्व करने के बाद से 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3 शायद आता है, प्लस 3 इक्वल टू 0. ये आएगा, ये आएगा. चेक कर लो एक बार. इससे मैंने सही लिखा हो क्वेश्चन ना? क्वेश्चन से लिखा है ना? 7x plus 5 times k plus 2 minus 3kz equal to. अच्छा अच्छा, गलत लिखा हुआ है. गलत लिखा है क्वेश्चन. क्वेश्चन गलत है क्या होगा? गलत है, तो इसलिए फंस रहा है. एक मिनट. इसको आप ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए फंस रहा है. दिस इज ये 30 होना चाहिए, दिस इज 30. अब चेक करना. थर्टी करके देखो. अब चेक करना 30 पे. ठीक है ना? ठीक है. तो k इक्वल टू सिंप्लाइज, एक तो फैक्टर बनेगा 2k प्लस 3 और एक बनेगा k प्लस 1, 2k स्क्वायर प्लस 2 प्लस 5k
दिस इंप्लाइज माइनस, पुट कर दो, ठीक है। पुट वैल्यू आपकी है, and therefore the equation of two tangent planes प्लेन्स आप पुट कर दो यहाँ पे एक बार, and that is 14x 20y 5y plus 9z, तो ये आ जाएगा, ऐसे दो बन जाएगा, चेक कर लीजिएगा जो भी आएगा, ठीक है ना। ओके, एक क्वेश्चन और करिए इसी टाइप का, फिर नेक्स्ट करता हूं मैं 256। 256, find the equation of tangent plane, find the equation of tangent plane to the conicoid 2x square minus 6y square, 2x square minus 6y square plus 3z square equal to 5, and pass through the line through the line x plus 9y minus 3z, x plus 9y minus 3z equal to 0, comma 3x minus 3y, 3x minus 3y plus 6z plus 6z minus 5. Solve this. भाई कितना आ रहा है? सेम क्वेश्चन, भाई के कितना आ रहा है? सेम स्टेप्स जैसे आपने लिखा पिछला क्वेश्चन, और इसकी कितना रखिए? हो गया, नहीं आया? फ्रैक्शन में आएगा कि नहीं ना? फ्रैक्शन में क्यों आएगा? क्वेश्चन सही लिखा आपने? क्वेश्चन क्या है? 2x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर, क्या है क्वेश्चन?
ठीक है। ठीक है, इक्वेशन का बंदा के का 20 के स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0, 20 के स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0, ये बनेगा सॉल्व करने के बाद। ठीक है, ये 20 के इक्वल टू प्लस माइनस ये बनेगा आपको सॉल्व करने के बाद से 20 के स्क्वायर माइनस 20 0, तो के इक्वल टू प्लस माइनस 1। ठीक है, पुट कर दो। ठीक है, टेंजेंट प्लेन के का जो आपने इस बनाया ना, दिस प्लस के टाइम दिस इक्वल टू 0, तो के पुट करो, दो टेंजेंट प्लेन मिल जाएगा। चेक कर लीजिएगा प्लस माइनस। ना कर लीजिएगा इसको। ठीक है, 257। Prove that the equation to the two tangent plane. Prove that the equation to the two tangent planes to the conicoid ax square plus by square plus cz square equal to 1, which pass through the line which pass through the line u equal to lx plus my plus nz minus p equal to 0, and u dash that define l dash x plus m dash y minus p dash equal to 0 is u square l dash square by a plus m dash square by b plus n dash square by c minus p dash square this minus 2u dash minus 2u dash of l dash by a plus m dash by b plus n dash by c minus pp dash plus u dash square. This is L square by E plus M square by B plus N square by C minus P square equal to 0। ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल पिछले जैसा है, जैसे जैसे पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही है, कोई अलग से नहीं है। ठीक है, बस करना क्या आपको थोड़ा सा तो सिंपल फॉर्मेट में है, राइट डाउन सॉल्यूशन, राइट डाउन एनी प्लेन थ्रू द लाइन, any plane through the line u equal to 0 comma u dash equal to 0 is u plus k u dash equal to 0। इसको क्वेश्चन नंबर 1 कर लो।
and this implies what is u? Lx plus my plus nz minus p plus k times L dash x plus m dash y 0, and this implies L plus k L dash of x plus m plus k m dash of y plus n plus k n dash of z minus p plus k p dash equal to 0. ठीक है, दिस इक्वेशन नंबर, इसको मैं ऐसे कर दें और इसको ऐसे कर लो, इसको इधर ले आओ, ठीक है, दिस इक्वेशन नंबर 2, राइट, एंड द कॉनिकॉइड इज x square plus by square plus 1, this is 3, ठीक है, बाकी स्टेप सेम. We know that if the plane, we know that if the plane, write down, लिख लिया आपने इसको, ओके. We know that if the plane Lx plus my plus nz equal to p touches the conicoid ax square plus by square plus cz square equal to 1, then the condition of tangency is L square by a plus m square by b plus n square by c equal to p square, and therefore L क्या पे L plus k L dash square by a plus m plus k m dash square by b plus n plus k n dash square by c equal to p square, p plus k p dash का होल स्क्वायर. ये बन गया कंडीशन. इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर दो, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बहुत सिंपल फॉर्मेट है. इधर इसको सिंप्लीफाई कर दो, तो ये बन जाएगा, दिस इंप्लाइज की स्क्वायर, ये हो जाएगा एल डैश स्क्वायर बाई ई प्लस एम डैश स्क्वायर बाई प्लस एन डैश स्क्वायर बाई सी और माइनस पी डैश स्क्वायर और प्लस 2k एल एल डैश बाई ए प्लस एम एम डैश बाई बी प्लस और माइनस पी पी डैश, ठीक है, और प्लस एल स्क्वायर बाई ए प्लस एम स्क्वायर बाई बी प्लस एन स्क्वायर सी माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू 0. और कुछ नहीं करना है, यहां से के की वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस वी बाई डैश यहाँ पुट कर दो. तो फ्रॉम 1 दिस इक्वेशन नंबर इज 3, right, from first what is k minus u by 2 dash, put the value of k in 3, ठीक है, we get the required result. आ जाएगा ना, आ जाएगा, पुट करके देख लो, ये आ जाएगा, पुट करके एलसीएम ले लो, पुट करके कैंसिल होगा, यहाँ पे आ जाएगा यू स्क्वायर बाई यू डैश स्क्वायर, ठीक है ना, और माइनस यहाँ पे यू बाई यू डैश आ जाएगा, तो यू डैश हो जाएगा, एलसीएम ले लो, यहाँ पे यू डैश स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ यू स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे यू डैश स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ ब्रैकेट में यहाँ पे माइनस 2 यू डैश आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, दैट इज आंसर. और सेम क्वेश्चन फॉर एलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर बाई
ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर स्क्वायर, ठीक है, सेम क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, ट्रिपल इज सिंबल, ट्रिपल इज द सिंबल फॉर दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, इक्विवेलेंट का सिंबल होता है। ट्रिपल मतलब होता है कि आप यू लिखो या यू इसके इक्वल है, इक्विवेलेंट टू है, ठीक है। तो ट्रिपल सिंबल फॉर द इक्विवेलेंट, नथिंग एल्स, सिमिलर टू, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, पुट कर लीजिएगा, सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। 257, 258, 258 is 258, right? Tangent planes are drawn to the left side. Tangent planes are drawn to the ellipse side. Tangent planes are drawn to the ellipse side. X square by a square plus y square by b square plus z square by c square equal to 1. Through the point alpha beta gamma, through the point alpha beta gamma, prove that the perpendicular to them, prove that the perpendicular to them through the origin generate the cone alpha x plus beta y plus gamma z square equal to a square x square plus b square y square plus c square z square, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। Write down tangent plane, any plane through the point alpha beta gamma is, write down any plane, any plane through the point अल्फा बीटा गामा ई, चूंकि ए दिया हुआ है तो आप इसको ऐसे लिख लो, एल टाइम्स एक्स माइनस अल्फा प्लस एम टाइम्स प्लस एन टाइम्स, दैट इज एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू एल अल्फा प्लस एम बीटा प्लस एन गामा, दिस इक्वेशन, ठीक है, राइट। और ए प्लेन किसको टच कर रहा है? टेंजेंट प्लेन आर ड्रॉन टू द पॉइंट, ड्रॉन टू द ellipse side थ्रू द पॉइंट, इसको तो राइट डाउन सेंस क्या ऐसे करो, दिस विल टच द ellipse side, this will touch the ellipse side x square by e square plus y square by b square plus z square by c square equal to 1 if, बड़ी कंडीशन क्या था, if e square l square तो l square plus b square m square plus
सी स्क्वायर स्क्वायर पी स्क्वायर, पी मतलब एल अल्फा प्लस एम बीटा और प्लस एन गामा स्क्वायर, दिस ये बन जाएगा, राइट। दिस इक्वेशन नंबर इज 2। एंड करना क्या है, परपेंडिकुलर टू देम, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर देम थ्रू द ओरिजिन जनरेट द कोड, राइट डाउन। Now the equation of the normal to the plane first. Now the equation of normal to the plane first is कितना हो जाएगा, through the origin x minus 0 by L plane first, ठीक है, इसको मेंशन कर लीजिएगा, first through the origin is, through the origin 0 0 0 is, याद आएगा, that is x by L equal to y by m equal to z by, दिस इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब इसका लोकस फाइंड आउट करना है, तो बेसिकली एलिमेंट को एलिमिनेट करना है, राइट डाउन। एंड देयरफॉर द लोकस ऑफ द लाइन 3 एंड देयरफॉर द लोकस ऑफ द लाइन 3 is obtained by eliminating element from equation 2 and 3, and therefore the locus of line 3 is obtained by eliminating LMN from 2 and 3, and therefore a square L मतलब x square plus b square y square plus c square z square L alpha lx plus my plus nz का अच्छा एलिमेंट, ओके ओके सॉरी अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई प्लस गामा जेड का, और ये आपका कंडीशन है। अब ये चीज किसमें दे सकता है क्वेश्चन में, कॉनिकॉइड, तो उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू 59। Prove that the locus of the foot, prove that the locus of the foot of the perpendicular, prove that the locus of the foot of perpendicular drawn from the center of the left side, drawn from the center of the left side x square by e square plus y square by v square plus z square by c square equal to 1 to any of its tangent plane is, to any of its tangent
any of its tangent plane is a square x square plus b square y square plus c square z square whole square equal to x square plus y square plus z square whole square. ये आपका क्वेश्चन है. Locus of the foot are perpendicular. Write down. The given conicoid is the given conicoid is x square by a square this. Let P of x1 y1 z1 be the foot of perpendicular. कहां से? From center 0 0 0. ठीक है, राइट, ऑफ फर्स्ट. ठीक है ना, टू एनी टेंजेंट, एनी टेंजेंट प्लेन, राइट, एनी टेंजेंट प्लेन टू फर्स्ट इज व्हाट इज टेंजेंट प्लेन. कितना होगा इसका टेंजेंट प्लेन? ये है ना, अभी इसको ए निकालना ना, ए लाइन का इक्वेशन लिखो ना, कैसे लिखेंगे? द लेट पी ऑफ एक्स वाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, ये आपका ऐसे, दिस इज, अगर डायग्राम थोड़ा सा बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं इसका, ये एलिप्सॉइड, राइट, एलिप्सॉइड लाइक दिस. ठीक है, और ये आपका टेंजेंट प्लेन, राइट, दिस. ठीक है, और ये इस पे फुट ऑफ सेंटर से परपेंडिकुलर. ठीक है, तो ये आपका ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर है और ये आपका 0 0 0 है. ठीक है ना, ऐसा ना. तो सेंटर टू एनी टेंजेंट प्लेन पे इक्वेशन फर्स्ट इज, क्या लिखेंगे? राइट डाउन डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपीआर, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ओपी कितना होगा? x1 y1 z1 एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कितना हो जाएगा? प्लेन इज, प्लेन का नॉर्मल जो है ना, कितना हो जाएगा? x1 प्लस y1 प्लस इक्वल टू, ये बनेगा ना p. अरे उसके फॉर्मेट में, अरे lx प्लस my प्लस z इक्वल टू p. टेंजेंट प्लेन कितना हो जाएगा परपेंडिकुलर, किससे पास करा? अरे इसका dr, तो x1 इंटू x माइनस 0 प्लस y1 इंटू, लेकिन ज्यादा अच्छा रहेगा किसके फॉर्म में? lx प्लस my प्लस z इक्वल टू p, उसे कम कर दो. ठीक है, तो ये बन जाएगा x y z हो जाएगी और lx प्लस my प्लस z इक्वल टू p. ठीक है, दिस इक्वेशन नंबर 2. since the plane 2 touches the ellipsoid 1 since the plane 2 touches, क्योंकि टेंजेंट प्लेन है, तो touches the ellipsoid 1, therefore what is condition, क्या होता था? e square l square, e square l मतलब x1 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर m स्क्वायर प्लस c स्क्वायर n स्क्वायर मतलब इक्वल टू p स्क्वायर. ये था ना, दिस इक्वेशन. ठीक है, कहां पे?
हाँ वही सीधे हो गया, हाँ डायरेक्ट हो गया, ठीक है, राइट। दिस क्वेश्चन नंबर इज 3। also x1 y1 z1 lies on the left side. also x1 z1 लाइन आर इक्वेशन 2 कर लो ना, इस पे लाई कर रहा है ना, कहाँ पे, टेंजेंट प्लेन पे। also x1 y1 z1 lies on the tangent plane 2, therefore कितना हो जाएगा, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस p। अब क्या करें इसमें से, p को एलिमिनेट कर दो, यहां से p वैल्यू पुट कर दो, एंड देयरफॉर फ्रॉम 3 and 4 हो जाएगा ए स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर z1 स्क्वायर इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर, एंड हेंस द लोकस ऑफ x1 y1 z1 is a square x square plus b square y square plus c square z square equal to x square plus y square z square का होल स्क्वायर। ठीक है, ये था आपका टेंजेंट प्लेन। तो जितने भी अच्छे क्वेश्चन थे मैंने सारा करा दिया, ठीक है ना, जो आपके पेपर में आ सकते हैं। देन नॉर्मल, ये था आपका टेंजेंट प्लेन, ठीक है। आना पर इसमें आ जाएगा। जनरली बेसिकली हम नॉर्मल से क्वेश्चन पूछते हैं, नॉर्मल से, और या तो हाइपरबोलॉइड ऑफ वन शीट, जनरेटिंग लाइंस, क्या होता है आपका जनरेटिंग लाइंस। जनरेटिंग लाइंस से क्वेश्चन बहुत दिनों से नहीं पूछा हुआ है, तो जल्दी आएगा जनरेटिंग लाइन से क्वेश्चन। नॉर्मल हमारे ख्याल से पीछे 2-3 साल लगातार पूछा है, जनरेटिंग लाइन पूछा रही है बहुत दिनों से, टेंजेंट प्लेन बहुत दिनों से नहीं पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो या तो जनरेटिंग लाइन से आएगा या टेंजेंट प्लेन आएगा। मेरा कैसा एक जनरेटिंग लाइन से आएगा, तो बहुत सिंपल है जनरेटिंग लाइंस, ठीक है ना। नॉर्मल्स, तो नेक्स्ट हेडिंग इज नॉर्मल। redefinition, simple definition, like this is any curve, suppose this is the plane, कोई भी plane, is any plane, this is the normal, ऐसा कुछ बनेगा इस सब का, ठीक है, राइट। ये आपका टेंजेंट प्लेन, ये आपका नॉर्मल लाइन, this is the point of contact, ठीक है, this point is P, suppose, और definition write down the normal at any point P of a surface, the normal at any point P of a surface is a line through the point of contact P again repeat, the normal at any point P of a surface is a line through the point of contact and perpendicular to the tangent plane at the point P, and perpendicular to the tangent plane at the point P. Again repeat, the normal at any point P to the surface is a line through the point of contact and perpendicular to the tangent plane at the point P. ठीक है ना। चलिए पहला क्वेश्चन,
that equation of the normal. The setting is equation of the normal. This question number 260. 260. This article. To find the equation of normal. To find the equation of normal at the point x1, y1, z1 of the conicoid ax square plus by square प्लस जे स्क्वायर, दो बन जाएगा आपका, एक एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कोट और एक लेफ्ट साइड एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो जैसे ये करोगे वैसे वो करोगे, सेम फॉर्मेट, ठीक है ना। राइट डाउन द गिवन conicoid is, the given conicoid is ax square plus by square plus the equation of tangent plane, the equation of tangent plane at the point x1, y1, z1 to first is ax x1 plus by y1 1. This equation number 2, right? टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन लिखो, ठीक है, राइट। और इस टेंजेंट प्लेन की जो नॉर्मल लाइन है उसका डियर क्या होगा, इसका कोफिशिएंट, क्योंकि इसका एक प्लेन का कोफिशिएंट क्या होता है, dr, उसकी नॉर्मल लाइन होता है, राइट डाउन। Therefore the direction ratio of the normal, the direction ratio of the normal to this plane B, the direction ratio of the normal to the plane to be ax1, by1, c z1, ठीक है। अब नॉर्मल का इक्वेशन, therefore the equation of normal is, therefore the equation of normal through the point, the equation of normal through the point x1, y1, z1 is x minus x1 by x1 equal to z minus z1 by c z1. दिस इज, बस ये आपका आंसर हो गया। तो एक तो हो गया नॉर्मल का इक्वेशन, ये हो गया इन द टर्म्स ऑफ dr, और इसी को अगर इन द टर्म्स ऑफ क्या फाइंड आउट करना हो, dc, डायरेक्शन कोसाइन, तो कैसे करेंगे, राइट डाउन, नोट कर लो, नोट इन द टर्म्स ऑफ dc, इन टर्म्स ऑफ dc डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। क्या करेंगे, if small p, write down, if small p be the perpendicular distance, if small p be the perpendicular distance from, perpendicular distance of the center कर लीजिएगा, perpendicular distance of the center
from the tangent plane to small p with the perpendicular distance from the center to distance of center from if small p with the perpendicular distance of center from the tangent plane to then what is p? What is p? ये जीरो जाएगा तो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z1 स्क्वायर इन मॉड, ठीक है, एंड देयरफॉर 1 बाई पी स्क्वायर कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर, ठीक है, उसे पी स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी। अब इसको डिवाइड कर लो डीसी टर्म्स में, ठीक है, राइट डाउन द डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन, द डायरेक्शन रेशियो of the normal to the plane of the normal to the plane B ax1 by1 cz1 and therefore direction cosine, therefore direction cosine of the normal to the plane B क्या करेंगे? डिवाइड कर दो तो ax1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस ठीक है by1 बाय सेम एंड cz1 बाय सेम और एक इसके इक्वल है 1 बाई पी स्क्वायर, ठीक है ना, 1 बाई इसको सीधे लिख सकते हैं, ये पूरे को लिख सकते हैं p, तो दैट इज कितना हो जाएगा? ax1p by1p और cz1p, ठीक है, एंड देयरफॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल and therefore the equation of normal through x1 y1 z1 in terms of dc b x minus x1 by e x1p y minus y1 by b y1p z minus z1 by c z1p, ठीक है, व्हाट इज p वेयर p इक्वल टू कितना आएगा? ये जो आपका p की वैल्यू है ये हो गया इन टर्म्स ऑफ dc। अब यही चीज अगर आपका x स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बाई सी स्क्वायर हो तो ए बी सी को रिप्लेस कर दो 1 बाई ए स्क्वायर में बी स्क्वायर, तो लिख लो नोट में, नोट note the equation of normal, the equation of normal at the point x1 y1 z1 to the ellipsoid, the equation of normal at the point x1 y1 z1 to the ellipsoid x square by e square plus y square by v square plus z square by c square is x minus x1 by x1 by a square y minus y1 by
y1 by b square z minus z1 by in terms of dr and x minus x1 by what is this px1 px1 हो जाएगा ना, हाँ तो p डिफरेंट हो जाएगा, उसका मतलब नहीं है, तो p डिफरेंट हो जाएगा, दैट इज y माइनस y1 बाय p y1 बाय b स्क्वायर और z माइनस z1 बाय p z1 बाय c स्क्वायर, ठीक है राइट। और इस p जैसे रिप्लेस करोगे 1 बाई abc जैसे रिप्लेस करते हो आ जाएगा, वेयर p इक्वल टू 1 बाय अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर बाय a पावर 4 x1 स्क्वायर बाय प्लस क्या जाएगा, तो ये हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ dr इन टर्म्स ऑफ dc, तो आप काट लिया जाएगा, ठीक है। जैसा आप पिछला किए हो सेम करना है, कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको ए बी सी रिप्लेस बाय 1 बाय स्क्वायर बाय बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ठीक है राइट। तो कल इसको कंप्लीट कर लेंगे, कल हो जाएगा, ठीक है ना। नॉर्मल पे आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 से 10 क्वेश्चन है, ठीक है। और फिर यही चीज रिपीट हो जाएगा किस पे, पैराबोलाइड पे, ठीक है, ये चीज पैराबोलाइड पे, तो कल ये खत्म हो जाएगा, परसों पैराबोलाइड खत्म हो जाएगा, उसका जेनेटिक लाइन्स आ जाएगा, इस हफ्ते में खत्म हो जाएगा, इस हफ्ते में पेपर 1 खत्म हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 22-23 मेरे ख्याल से क्वेश्चन आया है कि नहीं आया है, एक मिनट, 23 में इसका क्वेश्चन, एक मिनट, इसमें पेपर 1 का पेपर 1 देखना, पेपर 1 भेजना, पेपर 1 आपके पास, पेपर 1 एक मिनट 22 में पेपर 1 22 में तो नहीं आया था हमारे ख्याल से, 22 में आ गया था, ठीक है 22 में आया था, ठीक है ना, नॉर्मल से आया था, ठीक ना, ये नॉर्मल का लास्ट क्वेश्चन होता है, ठीक है, तो ये 22 में नॉर्मल से आया था, 23 में 23 में शायद नहीं आया था, तेईस में नहीं था, उसे देख लीजिएगा बस, ठीक है। इस बार मोस्ट प्रॉब्ली जहां तक आएगा, जहां तक मेरा गेस है जेनेटिक लाइन से आएगा, 23 में आया है, 23 में नहीं आया था, दिखा ना क्या है, खुला नहीं, 23 में आपका 23 का है ना, तो 23 में नहीं आया था, नहीं 23 में नहीं आया था, स्फीयर तक था, ओप्स पैराबोलाइड का वो दूसरा चीज था, ठीक है ना, उससे आया था आपका जनरल क्वेश्चन ऑफ सेकेंड डिग्री, जनरल क्वेश्चन ऑफ सेकेंड डिग्री से आया था, ठीक है। तो जेनेटिक लाइन दैट इज इंपॉर्टेंट, टेंजेंट प्लेन भी नहीं पूछा हुआ है, तो आएगा जरूर, आएगा जरूर, मतलब बिल्कुल आएगा क्वेश्चन एक यहाँ से, नॉर्मल से रिपीट कर सकता है, कुछ भी नहीं है, सिंपल टॉपिक है, मतलब आप ये कह सकते हो कि 40-50 क्वेश्चन करके 40 क्वेश्चन करके आपका एक पार्ट मिल जाएगा, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कॉनिकॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हाँ सीधे ऑलमोस्ट 1 फीड हो जाता है, क्योंकि इसके साथ बाकी दो पार्ट होता है तो इजी डालता है, हाँ वो इजी होता है, इसके साथ बाकी 2 पार्ट जो है ना इजी होता है,
ठीक है। और कॉनिकॉइड में ज्यादा क्वेश्चन होता ही नहीं है, नॉर्मल मिला करके 10 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन का है, 12 क्वेश्चन, 10 नॉर्मल में आ जाएगा, 22 क्वेश्चन हो जाएगा, और 10 क्वेश्चन के आसपास यही 15 क्वेश्चन आपका पैराबोलॉइड पे आ जाएगा, 37 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन जेटिंग लाइन पे है, 45 क्वेश्चन, और 5-10 क्वेश्चन आपका सेकंड डिग्री है। तो 50-55 क्वेश्चन मिला करके एक पार्ट पूरा सेट हो जाता है, ठीक है। और सेक्शन ए 150 पूरा फुल हो जाता है, ठीक है ना, 150 पूरा फुल हो जाता है। चलिए मिलते हैं कल, ठीक है ना।